हेलो बच्चों। 27 फेब कॉमर्स का पेपर है। ठीक है। और मैंने ना 50 MCQs प्रिपेयर करे हैं कॉमर्स की रिवीजन के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, टोटल 50 MCQs मैंने प्रिपेयर करे हैं कॉमर्स की रिवीजन के लिए। क्या ये MCQs एफिशिएंट हैं? क्या हम इससे कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे? स्टार्ट करते हैं। 50 MCQs कंप्लीट रिवीजन कॉमर्स की। रिपीटिंग अगेन, 50 MCQs कंप्लीट रिवीजन कॉमर्स की, और उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड वाले। शुरू करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी is the ratio of equity to debt. When will be the company trading on thin equity? एक एक कीवर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बार पेपर के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक एक कीवर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा पेपर के लिए। ठीक है। स्टार्टिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द रेशियो ऑफ इक्विटी टू डेब्ट. When will be the company trading on thin equity? When the proportion of debt is high, when the proportion of debt is low, when the proportion of equity is high, when the proportion of equity is low. करेक्ट आंसर इज व्हेन द proportion ऑफ डेप्ट इज हाई. फिर से देखिए क्या समझा रहा हूँ। जो ये MCQs करवा रहा हूँ अब मैं आपको, ये वही हैं जो पेपर में आने हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वो MCQs हैं जो अब हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है। तो कोशिश करिए इनको करने की, इनको समझने की। ठीक है। Trading on equity is the ratio of equity to debt. When will be the company trading on thin equity? When the proportion of debt is high, when the proportion of debt is low, when the proportion of equity is high, when the proportion of equity is low. The correct answer is when the proportion of debt is high. Detailed explanation. Trading on equity refers to the use of borrowed funds, debt to finance operations, aiming to increase return on equity when the return on investment exceeds the cost of debt. Thin equity implies a high debt to equity ratio. फिर से एक बार बोलूँगा, मैं जो ये MCQs करवा रहा हूँ अब आपको, ये सारी की सारी रिवीजन करवा देंगे आपकी। ठीक है। इसको अच्छे से समझ के चलिए प्लीज़। Trading on equity is the ratio of equity to debt. When will be the company trading on thin equity? When the proportion of debt is high. Trading on equity refers to the use of borrowed funds, debt to finance operations, aiming to increase return on equity when the return on investment exceeds the cost of debt. तो जब भी हम कभी प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट हमारा हाई होता है, इसका मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी थिन होती है हमारी। To which of the following options the right of preemption is available? Repeating again, to which of the following options the right of preemption is available? Existing shareholders. To which of the following options the right of preemption is available? Existing shareholders. Repeating again, to which of the following options the right of preemption is available? Existing shareholders. इसके साथ साथ ना मैंने एक्सप्लेनेशन भी बनाई है प्रॉपर। द राइट ऑफ प्रीएम्पशन और प्रीएम्प्टिव राइट इज अ प्रिविलेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अलाउइंग देम टू परचेज एडिशनल शेयर्स बिफोर दे आर ऑफर्ड टू द पब्लिक और न्यू इन्वेस्टर्स। कुछ क्वेश्चंस के ना MCQs याद रख लेते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी is the ratio of equity to debt when will the company trading on thin equity? When the proportion of debt is high. Second, to which of the following options the right of preemption is available? Existing shareholders. Types of preference shares.
The preference shares in which the holders are entitled to participate in the residual profits of the company in addition to their normal rate of dividend. Select them from the appropriate preference shares. कौन से होते हैं हमारे participating preference shares? Clear? जिस तरह से मैं एक बार आपको बता रहा हूँ ना कि MCQs को ले लो, MCQs से पूरी रिवीजन कर लो, आपको समझ आता चलेगा, ठीक है, कि किस तरह से हम पढ़ रहे हैं, और वो MCQs से हमारी सारी रिवीजन हो जाएगी। एक बार हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं, और वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से हम आइडिया लगाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आने हैं पेपर में। CFU करने वाले हैं, ये तो मैंने जस्ट क्वेश्चंस बनाए थे जो मैं आपको दिखा रहा था, अगर आपने फोकस किया हो तो ये CFQ वाले हैं। CFQ वाले क्वेश्चंस पे आ गए, हमारे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस पे आ गए हम। जस्ट मैंने एक PDF बनाई है, तो ये मैं आप लोगों को पोस्ट करूँगा। इन क्वेश्चंस को एक बार देख के चलिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वी आर डूइंग CFQ नाउ। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, सबसे पहला है, इन डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मास्टर प्लान्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड द प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। रिपीटिंग अगेन, इन डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन between the master plan of the enterprise and plans of different departments। कोई है जो बता सकता है 56th का आंसर? फिर से रिपीटिंग अगेन, इन डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, PDF आई विल शेयर, मैं आपको इसको पोस्ट कर दूंगा। वेरी गुड, प्लानिंग इज गुड आंसर, परफेक्ट। मैं आपको शेयर कर दूंगा ये PDF, आपको PDF प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। In planning function of management, there should be coordination between the master plan of the enterprise and plans of different department. 57th question. Dash is a unique 7-digit number issued by banks to their customers, used for making instant payments and funds transfers through immediate payment services. Repeating again, Dash is a unique 7-digit number issued by banks to their customers, used for making instant payments and fund transfers to immediate payment service. 57th का आंसर कोई बता सकता है? 57th, रिपीटिंग अगेन, कोई है? आज क्या बात है, आज फहाद वगैरह कोई भी नहीं आए। 57th का आंसर प्लीज़ बच्चों ज्वाइन कर लो, आ जाओ आ जाओ। 57th क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ मैं। 56th क्वेश्चन था हमारा, डैश इज़ अ यूनिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मास्टर प्लान ऑफ द एंटरप्राइज। इसका आंसर था हमारा प्लानिंग। 57th क्वेश्चन का कोई आंसर बता सकता है मुझे? इज एनीवन अवेलेबल? IFSC कोड नहीं है बेटा इसका आंसर, इसका है MMID, या IFSC भी बोलते हैं उसको, बट मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इज द एग्जैक्ट ISC कीवर्ड जो है हमारा, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। इसका एग्जैक्ट आंसर है MMID। आप लोग IFSC लिख के आ सकते हो, बट मैं आपको वही आंसर्स दे रहा हूँ जो ISC के ऑफिशियल वन हैं, ठीक है। तो ISC के ऑफिशियल आंसर में हमारा है, IFSC कोड नहीं है, MMID है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a wing set up by the government where an aggrieved consumer can directly present his grievance. Question number 58 का आंसर, Dash is an aggrieved wing. Repeating again, Dash is an aggrieved, एक बार चेक करिए क्या आंसर बनता है। Dash is an aggrieved wing where a consumer, फिर से Dash is an aggrieved wing set up by the government where an aggrieved consumer can directly present his grievance। क्या जा सकता है आंसर?
डैश इज एन एग्रीड, क्या लगता है? नहीं, सीसीपीए नहीं है बेटा इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा एग्रीव्ड कंज्यूमर का, इसका आंसर है हमारा लोक अदालत। रिपीटिंग अगेन, इसका आंसर है हमारा लोक अदालत। बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे जो इम्पोर्टेंट वन हैं, जो इम्पोर्टेंट वन है। अयन आपका 56 वाला ठीक था, उसका था इन प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वाला, ठीक है। उसके बाद आपका ये ठीक है हमारा, क्या कहते हैं, IFSC MMID, इसका है 58 का लोक अदालत, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश रेफर्स टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड कलेक्टिंग देम एट अ सेंट्रल पॉइंट। रिपीटिंग अगेन, इसका आंसर बता दीजिए प्लीज। 59th का डैश रेफर्स to procuring goods from different places and collecting them at a central point। 59th का आंसर क्या है हमारा? 59th क्वेश्चन का आंसर डैश रेफर्स टू procuring goods from different places and collecting them at a central point। चलिए प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन पे हूँ अपना, मेरा क्वेश्चन स्टिल अभी अवेलेबल है। डैश रेफर्स टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड कलेक्टिंग देम एट अ सेंट्रल पॉइंट। इसका आंसर है हमारा असेंबलिंग। मेरा 56th क्वेश्चन का आंसर था इन प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मास्टर प्लान ऑफ द एंटरप्राइज एंड द प्लान्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। 57th क्वेश्चन का आंसर MMID is a unique 7-digit number issued by banks to their customers used for making instant payments and fund transfer to immediate payment services। 57th का आंसर था मेरा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। MMID is a unique 7-digit number issued by banks to their customers used for making instant payments and funds transfers to immediate payment service। 58th क्वेश्चन का आंसर है मेरा लोक अदालत। लोक अदालत इज अ विंग set up by the government। Lok Adalat is a wing set up by the government where an aggrieved consumer can directly present his grievance। 59th question dash refers to procuring goods from different places and collecting them at a central point। Repeating again, dash refers to procuring goods from different places and collecting them at a central point। इसका आंसर है assembling। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आने हैं। तो आई थिंक जितना भी आप बोर हो या प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर करिए ही करिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट इज अगला आता है हमारा स्टेप्स इन स्टाफिंग का क्वेश्चन है। A dash step in staffing process which will help in building competent and satisfied workforce। Repeating again, a dash step in staffing process, a dash step in staffing process, ठीक है, which will help in building competent and satisfied workforce। Question number 60। यार मेरा एक ही स्टूडेंट है, लग रहा है अयान वही आंसर्स दे रहा है सारे। चलो कोई बात नहीं। अयान 60th क्वेश्चन का आंसर बता दो प्लीज़, क्या लगता है आपको? अ डैश स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस। ओके, 60 का आंसर है बेटा सिलेक्शन नहीं है, प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट अ स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस विच हेल्प इन बिल्डिंग कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। एग्जैक्ट आंसर इज प्लेसमेंट। स्टिल यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। अयान एक बात बोलूँ, अगर हम दोनों इसको ऐसे भी बनाए ना एक पर्सनल ट्यूशन टाइप में, वो भी हमारा चल सकता है। आप सही आंसर्स दे रहे हो, नंबर आ सकते हैं। देखो 56 का आंसर आपने सही बताया, MMID है 57th का। डैश इज अ विंग सेटअप बाय द गवर्नमेंट वेयर एन एग्रीव्ड कंज्यूमर कैन डायरेक्टली प्रेजेंट हिज ग्रीवियंस। हाँ जी ठीक है। उसके बाद इसका था लोक अदालत। डैश रेफर्स टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड कलेक्टिंग देम एट अ सेंट्रल पॉइंट, असेंबलिंग। Dash is a step in the staffing process which help in building competent and satisfied workforce। इसका था हमारा placement।
कंट्रोलिंग है। अंडर डैश कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट मस्ट कन्फाइन देयर अटेंशन टू क्रिटिकल डेविएशंस एट देयर लेवल। क्वेश्चन नंबर 61, रिपीटिंग अगेन, under dash concept 61 management must confine their attention to critical deviations at their level। प्लीज इसका आंसर तो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर देखो बेटा, सिंपल सी एक बात बोलूँगा, आप लोग चाहे कहीं से भी पढ़ो प्लीज़, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोग प्लीज़ 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 अपने पेपर के लिए कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, PYQs जो पिछले ईयर वाले हैं, 26 का स्पेसिमन, ये 2-3 चीज़ें अपने पेपर के लिए पढ़ के जाना, नंबर आपके आ जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ बच्चा लोग, अगर आप लोगों को कहीं से भी पढ़ो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने पेपर के लिए ये 1-2-3 चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, ये करके जाना, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अंडर डैश कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट मस्ट कन्फाइन देयर अटेंशन टू क्रिटिकल डेविएशंस एट देयर लेवल। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर एनीवन, कोई है जो बता सके? कम ऑन आयान, क्या लगता है आयान? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE। ये होता है, लिखा नहीं जाता, इसको एडिटेबल बनाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है। एक मिनट, कैमरा, ओके, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। Dash is a systematic approach to understand the business environment. Repeating again, Dash is a systematic approach to understand the business environment. कोई है जो बता सकता है? फिर से बोल रहा हूँ, Dash is an understanding approach. क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर, Dash is a systematic approach to understand the business environment. Anyone? No one? कोई बात नहीं। Dash is an understanding approach to understanding, Dash is an understanding approach to understand the business environment। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका आंसर है हमारा 62 का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, यानी स्वॉट एनालिसिस। बच्चों अभी 56 से 62 तक MCQs मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हुए हैं हमारे, प्लीज़ एक बार देखना। In dash function of management, there should be coordination between the master plan of the enterprise and the plans of different departments. In planning function of management, there should be coordination between the master plan of the enterprise and the plans of different departments. Question number 57. Dash is a unique 7-digit number issued by banks to their customers used for making instant payments and funds transfers to immediate payment service. MMID. MMID is a unique 7-digit number issued by the banks to their customers used for making instant payments and funds transfers to immediate payment service. ठीक है। 58 का, Dash is a wing set up by the government where an aggrieved consumer can directly present his grievance. Dash is a wing set up by the government where an aggrieved consumer can directly present his grievance. इसका आंसर है लोक अदालत। तो ना एक बार मैं पता है आपको कौन कौन से बोल रहा हूँ, मैं आपको वो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ सारे के सारे जो पेपर में आने हैं। मैं आपको कोई वो चैप्टर्स नहीं रटवा रहा हूँ यार कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो पेपर में आने हैं। फिर आते हैं, डैश रेफर्स टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड कलेक्टिंग देम एट अ सेंट्रल पॉइंट। फिर से, Dash refers to procuring goods from different places and collecting them at a central point. इसका आंसर है assembling. Assembling refers to procuring goods from different places and collecting them at a central point. 60. A a step in the staffing process which will help in building competent and satisfied workforce. इसका आंसर है हमारा placement. Repeating again, इसका आंसर है हमारा placement. कौन से हैं? डैश अ स्टेप, ये हो गया अंडर डैश अ स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस वाले का प्लेसमेंट। अंडर डैश कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट मस्ट कन्फाइन देयर अटेंशन टू क्रिटिकल डेविएशंस एट देयर लेवल। फिर से अंडर डैश कॉन्सेप्ट, कौन सा आंसर है इसका अब हमारा?
कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा मैनेजमेंट मस्ट कन्फाइन देयर अटेंशन टू क्रिटिकल डेविएशंस एट देयर लेवल? ठीक है, इसका आंसर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आप लोग बार बार वो समरीज पढ़ लोगे, ठीक है, वही चैप्टर्स को पढ़ लोगे। मैनेजमेंट में ये है, प्लानिंग में ये है, उसकी फीचर्स ये हैं, ऑर्गेनाइजिंग में ये है, कोऑर्डिनेशन में ये है, कंट्रोलिंग में ये है, ऐसे है। पर बच्चा लोग जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उनका क्या करोगे? फिर पेपर घूम गया, पेपर में ऐसा सब कुछ आ रहा होगा जो पढ़ा ही नहीं होगा और वो चीज़ हो जाएगी, फिर क्या करोगे? तो मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूँ, जो पेपर है वो यहाँ से बनता है। जो पेपर है वो यहाँ से बनता है। ये मैंने जितने भी इस टाइम पे पेपर रिसर्च किए ना, उन सब के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो फिर फ़ायदा नहीं है ना अगर आप उन सबको पढ़ रहे हो। तो मेन आपको क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है, इस पे एक बार अपना ध्यान लगाना है, क्योंकि दिस इज़ द मेन पार्ट। ये आप जब करोगे तो आपको समझ आएगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ये मेन पेपर है। डैश इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या है? डैश इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट। आंसर इज स्वॉट। आंसर इज स्वॉट एनालिसिस। इसका आंसर क्या है? डैश इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट। आंसर इज स्वॉट। डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ सेल्स ऑफिसर, परचेज ऑफिसर एक्सेट्रा। कौन से लेवल पे होते हैं? कौन बता सकता है कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे सेल्स ऑफिसर, परचेज ऑफिसर्स आते हैं? कौन से लेवल पे आएंगे हमारे? ठीक है, ये आएंगे हमारे ऑपरेटिंग, लोअर और सुपरवाइजरी। फिर से ऑपरेटिंग, लोअर और सुपरवाइजरी, ये वो लेवल्स वाले होते हैं जहाँ पे हमारे ये ऑफिसर्स आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, फाइनेंस ब्रिजेस द गैप बिटवीन डैश एंड डैश। फाइनेंस ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। फिर से रिपीटिंग अगेन, फाइनेंस ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से मैं 56 से एमसीक्यूज वापस लाऊंगा, ठीक है, ताकि कोई भी मेरा स्टूडेंट, चाहे वो एक भी हो, मेरे को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे कितने बच्चे हैं देख रहे हैं, मैं एक के लिए भी रेडी हूँ, मैं 10 के लिए भी रेडी हूँ। ठीक है। 56 का आंसर, इन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देयर शुड बी, in function of management there should be coordination between the master plan of the enterprise and the plans of the different departments. In planning function of management there should be coordination between the master plan of the enterprise and the plans of different departments. फिर उसके बाद 57th का आंसर, dash is a unique 7-digit number issued by banks to their customers used for making instant payments and funds transfers to immediate payment services. इसका आंसर है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। Question number 58, dash is a wing set up by the government where an aggrieved consumer can directly present his grievance. Dash is a wing, तो लोक अदालत is a wing set up by the government where an aggrieved consumer can directly present his grievance. Question number 59 का आंसर, dash refers to procuring goods from different places and collecting them at a central point. Assembling refers to procuring goods from different places and collecting them at a central point. Question number 60 का आंसर, dash is a step in the staffing process which will help in building competent and satisfied workforce. Answer is, इसका आंसर है हमारा 60 का placement. Placement is a step in the staffing process which will help in building competent and satisfied workforce. Question number 61, under dash concept management must confine their attention to critical deviations at their level. Under management by exception concept, MBE, controlling का एक concept होता है MBE concept, management must confine their attention to critical deviations at their level. 62, dash is a systematic approach to understand the business environment. SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threat. SWOT analysis is a systematic approach to understanding the business environment. Levels of management, dash level of management comprises of sales officer, purchase officer, etc. Lower level of management, operational level, supervisory level of management comprises of sales officer, purchase officer, etc. Finance bridges the gap between dash and sales. Finance bridges the gap between production and sales. आई होप यहाँ तक आपको समझ आए। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स जो ये हैं हमारे, ये भी पेपर का ही एक पार्ट है, तो बहुत ज़रूरी हैं ये बार बार पढ़ने समझने, क्योंकि ये भी पेपर का ही एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
65th question. Sparsh wants to transfer funds instantly to his brother in a real time through mobile or internet banking. In light of the above statement, ठीक है, in light of the above statement, answer the following. Name the service Sparsh can use to remit funds to his brother. 65th का आंसर, Sparsh wants to transfer funds instantly to his brother in real time through mobile or internet banking. Name the service Sparsh can use to remit funds to his brother. चलिए प्लीज़ इसका आंसर बताइए 65th क्वेश्चन का। हाँ यान कोई आंसर दे सकते हो? RTGS, वेरी गुड। 65th क्वेश्चन का आंसर है हमारा, पर आयन एक छोटी सी प्रॉब्लम है बेटा, वो इंस्टेंटली करना चाहता है ना, स्पर्श वांट्स टू ट्रांसफर फंड्स इंस्टेंटली टू हिज ब्रदर इन रियल टाइम थ्रू मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, तो इसका आंसर है IMPS। वो RTGS के उसमें तुरंत नहीं कर सकता ना, वो चीज़ हो जाएगा, तुरंत कर भी देगा तो बैंकिंग आवर्स वगैरह, और वो मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहता है, तो द करेक्ट आंसर इज IMPS। गिव 3 फीचर्स ऑफ द सर्विस मेंशन्ड इन ए अबव। 3 फीचर्स हैं हमारा, फ्लेक्सिबल, वर्सेटाइल, इजी टू यूज, फास्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मोबाइल अलर्ट, इनएक्सपेंसिव, सपोर्ट अदर प्लेटफॉर्म्स। मैं वही कीवर्ड्स आपको दे रहा हूँ जो ISC के हैं, रिपीटिंग अगेन। इसका आंसर है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, फ्लेक्सिबल, वर्सेटाइल, इजी टू यूज, फास्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मोबाइल अलर्ट, इनएक्सपेंसिव, सपोर्ट अदर प्लेटफॉर्म्स। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। X Limited, a non-banking company, accepted deposits of money from the public for buying raw materials. Name the short-term source of finance availed by X Limited. State any 3 advantages of this source. X Limited, a non-banking company, accepted deposits of money from the public for buying raw materials. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, नॉन बैंकिंग कंपनी ने एक्सेप्ट किया डिपॉजिट ऑफ मनी, ठीक है। नेम द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेल्ड बाय एक्स लिमिटेड, ठीक है। स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ दिस सोर्स। क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है? प्लीज कौन बता सकता है क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड अयान, पब्लिक डिपॉजिट इज द करेक्ट आंसर। तो नेम द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका हो गया। इसकी एडवांटेजेस हैं कन्वीनियंस, इकोनॉमी, फ्लेक्सिबल, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, नो चार्ज ऑन एसेट्स। रिपीटिंग अगेन, इसकी बेनिफिट्स हैं कन्वीनियंस, इकोनॉमी, फ्लेक्सिबल, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, नो चार्ज ऑन एसेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक, अ होल्डर ऑफ बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय अ बैंक, wants to purchase goods. He would like to make the payment at a later date. Which one of the 2 cards can he use? इसका आंसर कौन बताइए? क्वेश्चन नंबर, फीचर इंटरेस्ट फ्री, नो कॉम्प्लेक्सिटी। यस, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पब्लिक डिपॉजिट की फीचर्स आर ओके, इंटरेस्ट फ्री, हाँ, नो कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर, दीपक, अ होल्डर ऑफ बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय द बैंक, वांट्स टू परचेज गुड्स। क्रेडिट कार्ड, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन द डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड। कोई 3 डिफरेंसेस बता सकते हैं डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के? मैं एक बार ISC वाला भी आंसर बोल रहा हूँ। अ डेबिट कार्ड इज इशूड अगेंस्ट अ बैंक अकाउंट एंड पेमेंट कैन बी मेड अप टू द बैलेंस इन द अकाउंट। क्रेडिट कार्ड्स कैन बी ऑब्टेन्ड विद और विदाउट अ बैंक अकाउंट एंड इट अलाउज क्रेडिट फैसिलिटी टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर। तो अगर आपको ऑप्शन आ जाए कि अकाउंट्स एग्जाम में शेयर्स के क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट एंड रेशियो का अमाउंट गलत, एंट्री गलत हुआ है, एंट्री सही है, कितने मार्क्स मिलेंगे? बेटा अगर आपकी एंट्री सही है, अमाउंट्स गलत हैं, तो टोटल शेयर्स में अगर लास्ट की पूरा क्वेश्चन गलत है, या मतलब पूरा लास्ट की अमाउंट्स गलत हैं, या सारे अमाउंट्स में गलती आई है, ये बताओ एक बार, फिर मैं आपको भी बता देता हूँ कि कितने मार्क्स हो सकते हैं। आयान, आपका आंसर, differences between the debit and credit card. A debit card is issued against a bank account and payment can be made up to the balance in the account. Credit cards can be obtained with or without a bank account and it allows credit facility to the card holder. तो अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, लेट अस अज्यूम आपको क्वेश्चन आ जाए कि किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, और क्या वो तब भी क्रेडिट कार्ड होल्ड कर सकता है? तो उसका आंसर है यस, वो होल्ड कर सकता है। अगर उसका बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी वो कार्ड को होल्ड कर सकता है, ठीक है। चलिए
अब आगे आते हैं। द यूथ ऑफ टुडे use online methods of shopping, whereas the older generation prefers traditional shopping methods. Which element of the macro environment is being referred to here? इसका आंसर बताइए प्लीज, कौन सा हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज जो भी एक दो बच्चे भी मुझे देख रहे हैं यार, वो प्लीज मुझे क्वेश्चन 68 का आंसर बताओ। आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, लास्ट अमाउंट गलत है आपका तामीर, तो चलो फिर मैं आपको बताता हूँ, हैप्पी हो जाना। तो आपको इसमें 10 में से अराउंड 9 या 9.5 मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट लास्ट का अमाउंट गलत है। तो वेरी गुड आयान, सोशल इज करेक्ट आंसर। यूथ वाली बात हो गई थी, तो विच एलिमेंट ऑफ द मैक्रो एनवायरमेंट, ठीक है, तो इसका आंसर है सोशल एनवायरमेंट। स्टेट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स मेंशन्ड अबव। इसके कंपोनेंट्स कुछ बता सकते हैं? सोशल एनवायरमेंट के कोई कंपोनेंट्स? एजुकेशन लेवल, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, सोशल कस्टम्स, बिजनेस एथिक्स, सोशल ट्रेंड्स। कंपोनेंट्स हो जाएंगे हमारे एजुकेशन लेवल, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, सोशल कस्टम्स, बिजनेस एथिक्स, सोशल ट्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69। Based on the security of investment, debentures are of two types. Name and explain the above type of debentures. Repeating again. Based on the security of investment, debentures are of two types. Name and explain the above type of debentures. प्लीज़ अयान, कौन से हैं, कौन से डिबेंचर्स हैं जो टाइप बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे, बता दीजिए प्लीज़। बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेम एंड एक्सप्लेन द अबव टाइप ऑफ डिबेंचर्स। कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर, बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेम एंड एक्सप्लेन द अबव टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो ये दो टाइप ऑफ डिबेंचर्स होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स, एक होते हैं हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। रिपीटिंग अगेन, बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप अबव टाइप ऑफ डिबेंचर्स। एक होते हैं हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स, एक होते हैं हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, और हमारा जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो होते हैं हमारे मॉर्टगेज डिबेंचर्स, और एक होते हैं हमारे अनसिक्योर्ड वालों को नेक्ड डिबेंचर्स भी बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं उनको हम मॉर्टगेज डिबेंचर्स भी बोलते हैं, और जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं उनको हम मॉर्टगेज डिबेंचर्स, और जो अनसिक्योर्ड होते हैं उनको नेक्ड भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 70, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। एम से एस, एस एस, फिर एम से एस, मैनेजर से सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स ऐसे जा रहा है। कंपनी ए फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल, while company B does not follow it. Based on the above statement, answer the questions that follow. इसमें कोई मुझे बता सकता है क्या हो सकता है? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 70, कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 70, मैनेजर सबऑर्डिनेट, 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 मैनेजर सबऑर्डिनेट, ये भी मैनेजर सबऑर्डिनेट, ये मैनेजर सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। तो यहाँ कौन से इसकी बात हो रही है? कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 में? स्केलर चेन नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे मैनेजर एक सबऑर्डिनेट को, फिर दूसरे को, फिर इसको, फिर उसको, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा सबऑर्डिनेट? तो यहाँ पे बात हो रही है कंपनी ए फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल वाइल कंपनी बी डज नॉट फॉलो इट। तो इसका आंसर है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ एक ही मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहा है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो हमारा है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अब हमने यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड बी अकाउंटेबल टू हिम। नो पर्सनल कैन सर्व सेवरल मास्टर्स एट द सेम टाइम। फिर से बोल रहा हूँ, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड बी अकाउंटेबल टू हिम। नो पर्सनल कैन सर्व सेवरल मास्टर्स एट द सेम टाइम। गुड बेटा।
उसके बाद आता है 70 का सी क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वायलेटिंग द प्रिंसिपल, अंडरमाइन अथॉरिटी, वीकन डिसिप्लिन, डिवाइड लॉयल्टी एंड क्रिएट कंफ्यूजन एंड डिले. अंडरमाइन अथॉरिटी, वीकन डिसिप्लिन, डिवाइड लॉयल्टी एंड क्रिएट कंफ्यूजन एंड डिले. चलिए क्वेश्चन नंबर 71. Tata Consultancy Services has announced that it will link hikes and variable payouts to compliance with its recent RTO mandate, return to office mandate. Unit heads have communicated to their teams that grades necessary for promotions will be based on their track record of working from the office. A Times of India report stated. Identify the type of plan being highlighted in the above paragraph. फिर से ये केस पढ़ो एक बार और मुझे बताइए कि कौन से टाइप ऑफ प्लान की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 71 प्लीज पढ़ लीजिए. कौन से टाइप ऑफ प्लान की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 71 में. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज अनाउंस्ड इट विल लिंक हाइक्स एंड वेरिएबल पेआउट्स टू कंप्लायंस विद इट्स आरटीओ मैंडेट. यूनिट हेड्स हैव कम्युनिकेटेड टू देयर टीम्स that grades necessary for promotions will be based on their track record of working from the office. A Times of India report stated. प्लीज बता दीजिए एक बार कौन से टाइप ऑफ प्लान की बात हो रही है यहाँ पे. कौन सा टाइप ऑफ प्लान की बात चल रही है इस क्वेश्चन में. आयान, एनी आंसर. Identify the type of plan being highlighted in the above paragraph. I will tell the answer. इसका आंसर है पॉलिसी. पॉलिसी इज द टाइप ऑफ प्लान बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ. इसमें पॉलिसी की बात हो रही है. पॉलिसी की बात कैसे, देखिए उनकी एक पॉलिसी हो गई ना कि वो तभी प्रमोशंस वगैरह देंगे, इसलिए. एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स. पॉलिसी हो गया. एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द प्लान एज आइडेंटिफाइड इन ए. Guides decision making, standing plan, exist at all levels of organization, guides executive judgment and guidelines about how objectives are to be achieved. Repeating again, guides decision making, standing plan, exist at all levels of organization, guides executive judgment and guidelines about how objectives are to be achieved. Clear? I hope यहाँ तक क्लियर है. हाँ जी हनी, वेरी ओ हनी, गुड इवनिंग, वेलकम जी. यस, पॉलिसी. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 72. कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग. वेयर वी आर, मेजरमेंट. हाउ कैन वी गेट ऑन ट्रैक, अगेन करेक्शन. वेयर वी प्लान टू बी, इवैल्यूएशन. Interpret and evaluate the relationship between planning and controlling in the context of the above diagram. अब एक बार ना, ये तो हमें समझ आ गया कि डायरेक्टली रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का बोला हुआ है इन्होंने हमें, ठीक है. मैं अब एक बार इसका आंसर बोलता हूँ, आप सेम आईएससी के कीवर्ड्स निकालना. बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट फंक्शंस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग. Controlling requires standards that planning lays down. Planning sets the course. Controlling observes deviations so that future plans can be revised. एक बार फिर से बोलूँगा. Both are interrelated and interdependent functions. Planning is forward looking and controlling is backward looking. Controlling requires standards that planning lays down. Planning sets the course. Controlling observes deviations so that plans can be revised. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 73. देखिए पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़रूर आएंगे, और जो ये क्वेश्चंस हैं ना ये इसी टाइप के होंगे. क्वेश्चन नंबर 73 थोड़ा सा लेंथी है, केस बेस्ड है. एक बार पढ़ते हैं. द प्राइजिंग स्ट्रेटजीज. थोड़ी सी ना एक बार केस बेस्ड क्वेश्चंस की आदत डाल लो प्लीज़. The pricing strategies of Amul include a combination of competitive and low-cost pricing. Amul began with the vision to provide the best quality dairy products at affordable prices. The pricing of different products is taken into account by different factors such as the price of raw material, labor cost, farmers' profit, transportation cost, and storage cost. Amul is pursuing a low-cost strategy for products commonly used like milk, ghee, butter, and so on, where they offer these products at a lower price than their competitors.
For products like Amul Spray, Prolite, condensed milk, and Moo, the company adheres to a competitive pricing strategy where the price of these products is similar to their competitors. However, Amul also offers value packs and discounts to make its products more affordable for consumers. For the above case, explain each two internal factors and external factors that influence price determination. Very, very good question, beta ji. प्लीज़ एक बार अमूल वाला केस पढ़िए, अच्छे से पढ़िए अमूल वाला केस। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप लोगों ने मुझे बताने हैं। अमूल वाला केस एक बार पढ़ के चलिए, क्या कहता है। फॉर द अबव केस एक्सप्लेन ईच टू इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें ना अब बात हो रही है इंटरनल की। इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमारा जब हम बात करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट में हमारे जो फैक्टर्स आते हैं, इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, और उसी माइक्रो में ही हमारे एक्सटर्नल भी होते हैं। माइक्रो में हमारे कौन से आते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर, टॉप मैनेजमेंट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन से आते हैं हमारे, एक्सटर्नल में आते हैं हमारे कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, है ना। तो इसमें अब जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम खुद हैंडल कर लेंगे, क्वालिटी एंड सर्विस, प्रमोशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। इस केस में हमारे इंटरनल फैक्टर्स कौन से लग रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ एंड सर्विस, प्रमोशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशनल स्ट्रेटजी। एक्सटर्नल कौन से हो गए हमारे, डिमांड, कॉम्पोजिशन, बाइंग मोटिव्स, रिस्क, गवर्नमेंट कंट्रोल। रिपीटिंग अगेन इंटरनल फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी एंड सर्विस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। एक्सटर्नल, डिमांड, कंपटीशन, बाइंग मोटिव्स, रिस्क, गवर्नमेंट कंट्रोल। क्लियर, ये वाले थे हमारे। हेलो 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 हेलो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, गुड आयान, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 74th क्वेश्चन। Raman and Aman are pursuing a Master of Business Administration in a reputed college. Raman has the opinion that management is required in all kinds of organizations. However, Aman feels that management is not required in non-business organizations such as hospitals, schools, clubs, etc. In this situation, who is correct, Raman or Aman? प्लीज़ एक बार क्वेश्चन नंबर 74 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 74, रमन एंड अमन आर परसुइंग अ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रेप्यूटेड कॉलेज। Raman has the opinion that management is not required in all kinds of organizations. However, Aman feels that management is not required in non-business organizations such as hospitals, schools, clubs, etc. In this situation, who is correct, Raman or Aman? 74, Raman. रमन हैज़ द ओपिनियन दैट मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ बिजनेसेस में, मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह होती है, चाहे वो कहीं भी हो। वेरी गुड आयान, रमन इज़ द आंसर। जस्टिफाई द आंसर इन ए बाय एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट। चलिए फिर आते हैं बी पार्ट, जस्टिफाई द आंसर इन ए बाय एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें रेलिवेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सी लग रही है हमारी, मैनेजमेंट इज परवेसिव। सिंपल मैं एक चीज़ बोलूँगा, बहुत छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको आता है यही फीचर मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इज परवेसिव लिखिएगा, यूनिवर्सल मत लिखिएगा। लास्ट टाइम आईएससी काउंसिल की मीटिंग थी तो उन्होंने ये बोला था कि यूनिवर्सल वर्ड मत लिखिएगा, अगर कहीं भी आता है तो परवेसिव वर्ड यूज़ कीजिएगा। प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ, मतलब एक ही होता है परवेसिव और यूनिवर्सल का, बट स्टिल अगर आपको आए तो आप परवेसिव वर्ड यूज़ कीजिएगा, मत यूज़ कीजिएगा अपना क्या कहते हैं परवेसिव वर्ड यूज़ कीजिएगा, यूनिवर्सल मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 फंडामेंटल रीजंस जस्टिफाइंग द नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंडामेंटल रीजंस जस्टिफाइंग द नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके आंसर में इसमें हमें क्या लिखना है, ऐसे 5 रीजंस जो जस्टिफाई करें नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी हैं। वाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू ट्रेन मैनेजर्स, टू इम्प्रूव रिसर्च, टू अटेन सोशल गोल्स, टू क्लैरिफाई थिंकिंग,
to spread knowledge, to evaluate management behavior, to crystallize true nature of management. Repeating again, to increase efficiency, to train managers, to improve research, to attain social goals, to clarify thinking, to spread knowledge, to evaluate managerial behavior, to crystallize true nature of management. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया. हाँ गुड आयान, यूनिवर्सल होता है बट मैंने आपको बता दिया काउंसिल गाइडलाइन थी तो इसीलिए ये चीज़ थी. चलिए नेक्स्ट करते हैं. Based on Maslow's theory of motivation, answer the questions that follow with a brief description of the relevant needs in a given context. Based on Maslow's theory of motivation, मोटिवेशन चैप्टर का एक मैस्लो थ्योरी, एक बैरियर्स वाले क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर से बोल रहा हूँ, मोटिवेशन चैप्टर का मैस्लो थ्योरी और हमारा वो क्या कहते हैं मैस्लो थ्योरी और बैरियर्स वाले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. मिनट. चलिए, imagine you are a manager in a company where some employees are struggling to make ends meet financially. Which need of theirs would you address to ensure they feel motivated at work? Explain this need. फिर से, imagine you are a manager in a company where some employees are struggling to make ends meet financially. ठीक है, तो आते हैं. Which need of theirs would you address to ensure that they would feel motivated at work? Explain this need. Question number 75 के ए का आंसर बताओ. आयान क्या कहते हो? क्वेश्चन नंबर 75 ए का आंसर. इमेजिन यू आर अ मैनेजर इन अ कंपनी वेयर सम एम्प्लॉयज आर स्ट्रगलिंग टू मेक ends meet financially. Which need of theirs would you address to ensure they feel motivated at work? Explain this need. क्या हो सकता है इसका आंसर? फिजियोलॉजिकल नीड्स. रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन नंबर 75 के ए का ऑप्शन फिजियोलॉजिकल नीड्स. बी, you are a coach of a sports team and your athletes are very happy after winning a match. Explain the satisfied need. You are a coach of a sports team and your athletes are very happy after winning a match. Very good Ayan, physiological need. इसके बाद अगला है you are a coach of sports team and your athletes are very happy after winning a match. Explain the satisfied need. कौन सी है? बी वाला ऑप्शन. सेकेंड नीड है हमारी एस्टीम नीड्स. यू आर अ कोच ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम एंड योर एथलीट्स आर वेरी हैप्पी. इसका आंसर है हमारा एस्टीम नीड्स. थर्ड इज इन अ वर्क प्लेस where employees work individually and are constantly under stress to meet tight deadlines and heavy workloads. Which need given in Maslow's theories can be applied to promote a healthy work environment and teamwork? क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड सी का आंसर है हमारा इन अ वर्क प्लेस वेयर एम्प्लॉयज वर्क इंडिविजुअली एंड आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस टू मीट डेडलाइंस एंड हैवी वर्कलोड्स. विच नीड गिवन इन मैस्लोज थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू प्रमोट अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट एंड टीम वर्क? इसमें आती है हमारी सोशल नीड्स. देखिए, जब हमारी कोई मनी नीड्स है, ठीक है, मेक एंड्स मीट फाइनेंशियली वाली, तो उसमें हमारी लग गई फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिर जब हमारे कोच ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम, हम कोई एस्टीम की बात कर रहे हैं, है ना, आ गया वर्ड ना एस्टीम, स्पोर्ट्स टीम एंड हमारी वो थी क्या कहते हैं एथलीट्स आर वेरी हैप्पी, हमारी लग गई थी उसमें क्या कहते हैं एस्टीम नीड्स. यस, सोशल नीड्स. वेरी वेरी गुड अयान, वेरी वेरी गुड बच्चा. Due to the changing business environment, demand for the company's products is declining and workers feel insecure about their jobs. Identify and explain the needs of workers in the above situation. D part का answer. Due to changing business environment, demand for the company's products is declining and workers feel insecure about the jobs. जब उनको अपनी जॉब्स के लिए सिक्योरिटी चाहिए तो कौन सी नीड्स आती हैं हमारी? उस टाइम पे नीड्स आती हैं हमारी सेफ्टी नीड्स. क्लियर है? चलिए
आगे करते हैं। नेक्स्ट इज 76th क्वेश्चन। बस 2-3 ही रह गए हैं, फिर हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएंगे। यस, सेफ्टी नीड्स इज करेक्ट। चलिए, राघव एन इंडिविजुअल परचेज्ड एन एयर टिकट फ्रॉम कंफर्टेबल फ्लाइंग लिमिटेड फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। The flight was scheduled to depart at 6 p.m. The boarding doors were closed at 5:35 p.m. This flight ticket mentions that the boarding doors will be closed 25 minutes before the departure. Raghav had reached the airport at 3 p.m. and since he had a lot of time, he thought about taking a nap. He missed the final call made at the airport and when he woke up, it was 5:50 p.m. He rushed to the boarding gate but was not allowed to board. Mr. Raghav wants to sue the company Comfortable Flying Limited under the Consumer Protection Act for not allowing him to board through the flight had not left. Okay. 5:35 5 ओके, तो बोर्डिंग डोर्स क्लोज्ड 5:50 पे वो पहुंच गया। ओके, कम ऑन गिव मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 का फर्स्ट ए, विल राघव केस कंप्लेंट बी कंसीडर्ड वैलिड? प्लीज मुझे बताइए, राघव का केस का फर्स्ट क्या बात है यार, अच्छा कमेंट लिखा है। राहुल पढ़ाई कर ले वरना पेपर वाले दिन फील्डिंग सेट हो जाएगा तेरा। ओके ओके, नहीं आयान, एक्चुअली इसका आंसर है नो, द एयरलाइंस हैव मेंशन्ड देयर पॉलिसी एंड रूल्स विच दे हैव फॉलोड। बेटा इसमें देखो ना, उनकी पहले ही पॉलिसी थी। द फ्लाइट टिकट मेंशन दैट द बोर्डिंग डोर्स विल बी क्लोज 25 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर। ठीक है ना, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी यूज आउट की है। इस केस में राघव कंप्लेन नहीं कर सकता ना। नो, द एयरलाइंस हैव मेंशन्ड देयर पॉलिसी एंड रूल्स विच दे हैव फॉलोड, सिंपल। चलिए, केस 2। Miss Safar has undertaken a contract with Trip Planners Limited for a term of 5 years. Her package includes hotels of 4-star and above categories. Miss Safar on her first trip finds that the hotel provided to her is not a 4-star hotel. There were termites in the hotel room. She gets her hotel changed and the new hotel allotted to her does not provide her quality food. As an aggrieved consumer, state any 3 appropriate remedies available to Miss Safar. बी पार्ट का आंसर, चलिए, रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। बी का फर्स्ट का आंसर है रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। सेकंड, रिफंड ऑफ प्राइस। थर्ड, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन बाय ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड टू मिस सफर। फिर से, रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, स्टेट एनी 3 एप्रोप्रिएट रेमेडीज अवेलेबल टू मिस सफर। ये है हमारी रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, रिफंड ऑफ प्राइस, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन बाय ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड टू मिस सफर। मतलब अगर उनको कुछ प्रॉब्लम लगी होटल वगैरह में, तो एज एन एग्रीव्ड कंज्यूमर दे हैव 3 एप्रोप्रिएट रेमेडीज: रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, रिफंड ऑफ प्राइस, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। क्लियर है? चलिए, अगला आते हैं, इस थर्ड केस पढ़ते हैं। मिस स्वीटी बायज अ पैकेट्स ऑफ चिप्स फ्रॉम अ शॉप. She doesn't check the expiry date mentioned on the packet of chips. Is Miss Sweetie, case 3, a responsible customer? Give a reason for your answer. No, didn't check expiry date. She is not a responsible customer na, because she did not check an expiry date. Clear? Explain any other 2 responsibilities of Miss Sweetie as a consumer. Insist on a bill and check the quality mark on the product. Repeating again, insist on a bill and check the quality mark on the product. क्लियर है? चलिए, यहाँ तक एक बार हमने डन कर लिए हैं। जस्ट 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे, उनको भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 में।
चलिए आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स का क्वेश्चन। हम्म Okay. After an in-depth analysis of pilot rosters, fatigue-related reports and direct feedback from pilots, we have introduced revised flight duty time limitations, regulations that include increased rest periods, redefining night duty, and regular fatigue reports to be shared by airlines, tweeted Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia. A type of plan which provides no scope for discretion is highlighted in the above paragraph. Identify the type of plan. इसमें बात हो रही है हमारी आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ pilot rosters, fatigue related reports, and direct feedback from pilots, we have introduced flight duty time limitations. Regulations that include increased rest periods, redefining night duty, and regular fatigue reports to be shared by airlines. ट्वीटेड सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। अ टाइप ऑफ प्लान, इसमें कौन से टाइप ऑफ प्लान की बात हो रही है? कौन सा प्लान हो सकता है हमारा? अ टाइप ऑफ प्लान विच प्रोवाइड्स नो स्कोप फॉर डिस्क्रिशन इज हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। इसमें बात हो रही है हमारे रूल की। इसमें बात है अ टाइप ऑफ प्लान, इसमें है रूल। State any two features of the plan as identified in above. Standing plan, specific statements of what should or should not be done, dealing with specific situations, and forced rigidity with few exceptions. Repeating again, इसमें है standing plan, specific statements of what should or should not be done, dealing with specific situations, and forced rigidity with few exceptions. Clear? चलिए स्टेट एनी टू फीचर्स हो गई हमारी। एक्सप्लेन फीडबैक एज वन ऑफ द स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना, उसमें एक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कम्युनिकेशन चैप्टर के बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, एक फीडबैक वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 में फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन बाय द रिसीवर. It represents the return flow of communication with the help of the feedback. The reader can judge the effectiveness of his message. Without it, the process of communication remains incomplete. Feedback is the response or reaction by the receiver. It represents the return flow of communication. With the help of feedback, the reader can judge the effectiveness of his message. Without it, the process of communication remains incomplete. Describe any four objectives of communication: to educate and train people, to motivate employees, to promote managerial efficiency, to implement decisions quickly, to facilitate leadership, to carry out change, to carry out teamwork, to secure feedback. क्लियर है? चलिए सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 2019 वाला फॉलो या 23 वाला? बेटा अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपने एक्ट फॉलो करना है ना, वो 23 वाला करना है। तो जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह वगैरह हों वो 23 वाली फॉलो कीजिएगा प्लीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, द लास्ट वन। इसके बाद कल मैं आप लोगों को एक पहले स्पेसिमन कराऊंगा 2026 का, कल का दिन, और कल है 24 और 25 और 26, 3 दिन में आई विल ट्राई कि मैं आपको 3 पेपर कराऊं। स्पेसिमन 2026 का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2025 का, स्पेसिमन 2025 और फिर 2024। तो अब जितने हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है, जितने PYQs हो सकेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 78। Govind Lal Sharma held a pension account in a bank.
He was also issued an ATM card for the account. Sharma received a call from an identified number informing him of daily debits of 40,000 from his account for 9 days. Okay. He was surprised as he had not received any SMS regarding the messages regarding the transactions. बेटा ये 78 वाला केस है ना, एक बार इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो, ऐसे आ सकते हैं कई बार, ऐसे केसेस बनते हैं ज़रूर जो ट्रेंड्स हो रहे होते हैं ना करंट अफेयर्स मार्केट में, उस बेसिस पे। तो ये जो गोविंद लाल शर्मा हेल्ड अ पेंशन अकाउंट इन अ बैंक, ही वॉज ऑल्सो इशूड एन ATM कार्ड फॉर द अकाउंट. Sharma received a call from an unidentified number informing him of daily debits of 40,000 from his account for 9 days. He was surprised as he had not received any message, any SMS message regarding the transactions. The following day, on visiting the bank branch with his ATM card and passbook, he discovered the illegal withdrawal of money from his account. What is the purpose of an ATM card held by the account holder? What is the purpose of an ATM card held by the account holder? इसका आंसर है to withdraw and deposit money. Through ATM card, you can't only withdraw the money, you could deposit the money also. So to withdraw and deposit the money. Second, what second purpose is to get the account statement. ठीक है. How the transactions for which a bank sends an SMS alert to an account holder, how can this facility be availed? SMS, the bank sends an SMS for any transaction, debit or credit in the customer's account. Third is, what are the features of e-banking? Face-to-face contact, need of computer, mobile by both the customer and the bank, and e-banking option is needed. Features of e-banking: face-to-face contact, need of computer, mobile by both the customer and the bank, and e-banking option is needed. I hope यहाँ तक आप लोगों को डन है. To be able to withdraw cash effortlessly through ATM without going to the bank. क्या बात है, a good answer. चलिए अब इसको यहाँ तक एंड करते हैं. हमने काफ़ी कॉम्पिटेंसी कर लिया. अब कल से मैं कराऊंगा, कल मॉर्निंग 9 AM आई विल बी अवेलेबल. सो आई गो विद द सैम्पल पेपर फर्स्ट. हम करेंगे स्पेसिमन पेपर 2026. आई होप आप सब बच्चे जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं यार, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, सबके नंबर बहुत अच्छे आए. ठीक है ना. चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू जी.